Dear students, Assalamu alaikum. From today's lecture onward, we are going to cover different topics under the umbrella of advanced topic, or you may say advanced software engineering. So, topic for today's lecture is software process improvement. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. In our last lecture, we discussed product metrics for different product development phases. We started our lecture with the class-oriented metrics, different metrics that are applicable at class level, like weighted methods per class. In this metric, we tried to calculate the number of methods with their associated complexity, and this number actually represent the complexity of the class, and apparently it seems quite straightforward metric that we need to just calculate the methods, but still we need consistent approach to count it. Then we can effectively use this metric. And second metric is depth of the inheritance tree, and this metric indicates about the length of the one node, root node, to the specific other node, and as we increase this depth, the design complexity also increases, and the effort required to do code or test such kind of classes definitely increases. And then another metric is the number of children that we discussed, and children are the immediate subordinate classes, and this number is again shows the inheritance or the reusability and design complexity. Reusability increases. When reusability increases, definitely the test scenarios increases, test effort to evaluate or assess such classes also increases. The coupling is also quite common measure, and coupling indicates that how much collaboration between the classes or the object involved. So it should be minimized. If coupling is increased, definitely it reflects the design complexity, and effort to test such classes needs we need more effort to test such classes. And another metric was response for class, and similarly we also discussed lack of cohesion, and lack of cohesion also shows the bad design. If class contains the lack of cohesion, then it means it is lack of cohesion is another metric that we discussed. और cohesion अगर class के अंदर जो है वो कम होगी तो again ये reflect करता है कि design is not too good, और testing effort भी increase करेगी. और इसी तरह से कुछ और metrics जो है वो भी apply किए जा सकते हैं class के context में. और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन मैट्रिक्स को, और कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन मैट्रिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया 3 C's: मीन, कोहेजन, कपलिंग एंड कम्प्लेक्सिटी. और इसके अपने डिफरेंट मैट्रिक्स जो कॉमन है उसको हमने डिस्कस किया. जैसे कोहेजन के अंदर हमने बात की कि कितने नंबर ऑफ मेथड्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और किस तरह से जो है उनका यूजेज है. और इसी तरह से कपलिंग के अंदर हमने बात की कि कितना जो है दूसरे एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट के साथ किस तरह से कितने पैरामीटर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, और अगर ये नंबर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो है डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और टेस्टिंग की एफर्ट भी इंक्रीज़ करेगी. और फिर कम्प्लेक्सिटी की बात की. कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने एक ही कॉमन मेट्रिक है कन्वेंशनल कंपोनेंट के लिए, और दैट इज़ साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी. और साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी जो है वो नंबर ऑफ लॉजिकल पास जो है इंडिपेंडेंट पास उनको रिप्रेजेंट करता है. जैसे जैसे लॉजिकल पास जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी.
कोड की एफर्ट बढ़ेगी, उसको टेस्ट करने की एफर्ट बढ़ेगी। फिर हमने कुछ ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात की, और ऑपरेशन ओरिएंटेड को हम मेथड ओरिएंटेड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसके अंदर भी हमने कुछ कॉमन मैट्रिक्स को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन मैट्रिक्स को डिस्कस किया फॉर वेब एप्लीकेशन। हमने कहा कि वेब एप्लीकेशन की नेचर जो है वो डिफरेंट है दूसरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से, और सॉफ्टवेयर जब वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इंटरफेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एस्थेटिक जो है उसकी करैक्टरिस्टिक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट मैट्रिक्स को देखा, और हमने ये भी वहाँ पे डिस्कस किया कि स्टिल जो ये मैट्रिक्स हैं बहुत ज़्यादा वैलिडेटेड नहीं है, या इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अगेन हमें इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स क्वालिटी, और इनको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, रादर देन कि हम इसको बेस बनाते हुए कि इतने वैलिडेटेड नहीं है और हम विदाउट एनी मैट्रिक्स जो है प्रोसीड करें। तो यूज़ करना आल्दो कि इतने अच्छे नहीं हो मैट्रिक्स, फिर भी बेहतर है ना यूज़ करने से। और इसके अंदर फिर हमने इंटरफेस मैट्रिक्स देखे, और इंटरफेस मैट्रिक्स जो है वो बड़े सिंपल से थे कि जैसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन्स जो है वो कितने हैं पेज के ऊपर, और फिर एक स्पेसिफिक जो रीजन है उसके अंदर क्या जो है कंटेंट्स हैं, और फिर इसी तरह से नंबर ऑफ जो लिंक्स हैं वो क्या है, डिफरेंट जो इमेजेस यूज़ किए गए हैं, ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो क्या नंबर है, कोई और मीडिया जो यूज़ किया गया है ऑडियो और वीडियो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। और फिर इसी तरह एस्थेटिक मैट्रिक्स की बात की, और एस्थेटिक मैट्रिक्स आर आल्सो सिमिलर टू द इंटरफेस मैट्रिक्स। इसके अंदर भी हमने लिंक्स की बात की, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं पेज के ऊपर अवेलेबल हैं, और इसके अंदर हमने कलर स्कीम की बात की, नंबर ऑफ कलर्स एम्प्लॉयड ऑन दैट स्पेसिफिक पेज, और ये रीजनेबल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए नंबर। इसी तरह से हमने बात की कि जो नंबर ऑफ फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, साइज़ क्या है, उसकी डिफरेंट जो फॉर्मेटिंग है लाइक बोल्ड और इटालिक वो कितना है उस पेज के ऊपर स्पेसिफिक, या नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर। तो ये इस तरह के मैट्रिक्स हैं जो कि आपके एस्थेटिक के हवाले से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमने नेविगेशन मैट्रिक्स की बात की, और नेविगेशन मैट्रिक्स के अंदर भी हमने नंबर ऑफ लिंक्स को मेनली फोकस किया कि नंबर ऑफ लिंक्स जो है एक पेज के ऊपर कितने हैं, और कितने नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स हैं विद इन दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और फिर हमने कहा कि जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं अगर उसको डिवाइड करें विद द नंबर ऑफ पेजेस तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी डेंसिटी प्रोवाइड करता है, कितना कम्प्लेक्स या सिंपल नेविगेशन मैकेनिज्म है फॉर दैट स्पेसिफिक एप्लीकेशन। और फिर हमने बात की सोर्स कोड मैट्रिक्स की। सोर्स कोड मैट्रिक्स के लिए भी कुछ कॉमन मैट्रिक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को देख सकते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को देख सकते हैं, और फिर इनकी क्या मैनिपुलेशन है, ये एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, और इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उस प्रोग्राम की लेंथ है, और उसका वॉल्यूम कि वो कितनी जो है मेमोरी लेगा, कितनी बाइट्स लेगा। और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग की बात की, और हमने ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने फाइनली और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हमने बात की तो हमने यहाँ पे डिज़ाइन के मैट्रिक्स जो थे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के हवाले से हमने डिस्कस किया, उन्हीं को हमने यहाँ पे कहा कि एप्लीकेबल हैं टेस्टिंग के टाइम के ऊपर भी, और डेफिनेटली वो मैट्रिक्स जो है डिज़ाइन के ऊपर भी हेल्प आउट करते हैं कि डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी क्या है और उसको कितना जो है एफर्ट रिक्वायर्ड होगी कोड करने के लिए। लेकिन वंस इट इज़ कोडेड देन वी हैव टू टेस्ट इट, और वो जो टेस्टिंग के लिए सेम पैरामीटर सेम मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि वो कितना क्वालिटी कंपोनेंट है, क्वालिटी क्लास या ऑब्जेक्ट है।
तो वही मैट्रिक्स जैसे डेप्थ ऑफ इनहेरिटेंस ट्री है, तो यही मैट्रिक डिजाइन टाइम के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और सिमिलरली इट इज आल्सो एप्लीकेबल एट टेस्टिंग टाइम, तो ये टेस्टिंग का मैट्रिक भी है। फिर हमने मेंटेनेंस फेज के ऊपर जो मैट्रिक्स हैं उसके हवाले से बात की, और हमने इसको कंक्लूड किया कि हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडल से बात स्टार्ट की, और हम आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो मेंटेनेंस होती है वहाँ तक हमने डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स को देखा, और इससे हमने ये लर्न किया कि हर फेज के ऊपर डिफरेंट मैट्रिक्स जो है वो एप्लीकेबल हैं, अवेलेबल हैं, और हम उनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। और मेंटेनेंस फेज के जो हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। वी हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं इन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और फिर इसी तरह से वी नीड टू कंसीडर द अपडेटेड मॉड्यूल्स जिनके अंदर चेंजेस किए गए हैं वो नंबर क्या है, और फिर इसी तरह से क्या नंबर है जो कि नए मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर मैट्रिक है कि कितने जो मॉड्यूल्स हैं जो कि डिलीट किए गए हैं, जिसको डिस्कार्ड किया गया इन द करंट वर्जन। ये जो 4 मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स के थ्रू जो है हम सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये नंबर जो है ये 1 हो, और फिर ये हमें इंडिकेट करता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है दैट इज़ स्टेबल। आई होप कि आपने प्रोडक्ट मैट्रिक्स के हवाले से काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न की होगी, और जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे तो इन मैट्रिक्स को वहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के मुतालिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, और इसकी क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अगर आप रिकॉल करें ट्रिपल कॉन्स्टेंट को, और हमने शुरू के लेक्चर्स के अंदर जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने बार बार इसको देखा कि जो आईटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, वो आमतौर पे फेलियर की तरफ जाते हैं, और आल दो के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको फॉलो करने के बाद जो सक्सेस रेट है आईटी प्रोजेक्ट्स का, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का, वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल मोर देन हाफ जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं उसका वो फेलियर की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो ट्रिपल कॉन्स्टेंट है, क्वालिटी स्कोप, टाइम और कॉस्ट, और इसके अंदर एक चौथा कॉन्स्टेंट जो है वो क्वालिटी का भी है, उसको मीट करने में जो है अक्सर प्रोजेक्ट्स या अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो फेल होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑन टाइम हो, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन हो, जो बजटेड एस्टिमेट हैं उसको पूरा करें, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा। अगर हम प्रोडक्ट जो है वो ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स के अंदर नहीं हम डिलीवर कर रहे, और उसको उन कॉन्स्टेंट्स को जो है हम वायलेट कर रहे हैं, या ओवर बजटेड हैं, या हम लेट प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर हमें प्रोसेस के अंदर रिफाइनमेंट चाहिए होगी, और वो प्रोसेस जो है हमें लीड करेगा टूवर्ड्स बेटर प्रोडक्ट, और हम ऑन टाइम या अकॉर्डिंग टू द स्कोप प्रोडक्ट डिलीवरी की तरफ जाएंगे। तो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो जो ऐसा प्रोसेस जो कि हमें हेल्प आउट करे उस तरह के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, उसको वी नीड टू डिफाइन इन इफेक्टिव मैनर। अगर उसको प्रॉपरली हमने डिफाइन किया है तो फिर डेफिनेटली उस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगी दैट वुड बी अ गुड प्रोडक्ट। और फिर इसी तरह से इस जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है इटसेल्फ वो क्या है, वी नीड टू असेस द एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, और उसके अंदर जो है हमारे पास जो क्राइटेरिया है दैट इज इफेक्टिव
प्रोसेस जिसको हमने डिफाइन किया है, जो हमने कहा है कि दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस, और ये अगर फॉलो किया जाए तो हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छी होंगी। तो अब असेसमेंट जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस की बेस्ड ऑन दैट इफेक्टिव प्रोसेस होंगी, जिसको हमने अपने लिए बेंचमार्क बनाया है। और फिर इसी तरह से क्या होगा, वी नीड मीनिंगफुल स्ट्रेटजी टू ट्रांसफॉर्म द प्रोसेस। और ये 3 की एक्टिविटीज हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, या इन जनरल हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द प्रोसेस, देन वी हैव टू assess the existing process, and third is the strategy to transform the process। और फिर ये जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको रिसोर्सेज स्पेयर करने होंगे, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, मनी और ह्यूमन रिसोर्सेज, सारा कुछ होगा, तभी जाके आप इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और अगेन इसका बेनिफिट क्या होगा, जो पहले जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की कि प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाते हैं मोस्टली आईटी के अंदर, तो अगर हम प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली और मोस्ट प्रोबेबली we will come up with the good process that will generate or that will be the source of good products। और वो products क्या होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, और उसके अंदर हम वो जो ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स है उसको मीट करेंगे। इस डायग्राम को देखें, फ्रेमवर्क जो है इन जनरल एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के हवाले से डिस्क्राइब किया गया, प्रेजेंट किया गया है, और ये पेज नंबर 788 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच जो बुक है उसका, और आई थिंक इट्स चैप्टर नंबर 30। और इस फिगर के अंदर देखें की कंपोनेंट्स बताए गए हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, और उसके अंदर भी जो सबसे कोर कंपोनेंट है दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर। और बाकी जो की कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द कैपेबिलिटी जो डिटर्मिनेशन है, और कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन देखें कि वी नीड टू असेस आवर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस, उसके अंदर क्या हमारी कैपेबिलिटीज हैं, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और उसको जो है देखना है। और अगेन हमने उसका मैच्योरिटी लेवल देखना है, और इस पे आगे बात करेंगे कि मैच्योरिटी से यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है। तो ये एक प्रोसेस है, और फिर उसके बाद जो है उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस को अगेन हमने जब असेस कर लिया और देख लिया कि क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं या हमारी वीकनेसेस हैं, तो हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी बनानी है। और इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी जो है वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उस प्रोसेस के अंदर, और उस चेंजेस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और अगेन उसको असेस करेंगे कि आइदर हमने उसके अंदर इम्प्रूव किया और क्या हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को इन्हांस किया और अपनी वीकनेसेस को जो है वो रिड्यूस किया या मिनिमाइज किया। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है या फ्रेमवर्क इन जनरल। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स या मॉडल्स प्रपोज किए गए, लेकिन ये बिल्कुल एक जेनेरिक सी जो है हमारे पास ओवरऑल प्रेजेंटेशन है SPI फ्रेमवर्क की। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो इनिशिएटिव है वो लेते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उनको हम यहाँ पे सपोर्ट ग्रुप कह रहे हैं, कि जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दे पार्टिसिपेट विद डिफरेंट इंटेंशंस, हर एक की अपनी इंटेंशन होती है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ दोज पीपल इज quality certifiers. They are very interested in the quality products, and they believe that if our process is a quality process, then it will lead to the product quality. तो ये लोग जो है quality conscious होते हैं, और ये जब आपको सपोर्ट करते हैं या आपके की मेंबर्स होते हैं, तो इनका इंटरेस्ट, प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो क्वालिटी है। इसी तरह से एक और जो टाइप है या एक ग्रुप है दैट इज फॉर्मलिस्ट। और फॉर्मलिस्ट कौन होते हैं? दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस वर्क फ्लो, कि क्या प्रोसेस है,
किस तरह से जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड टू मॉडल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू डिफरेंट मॉडलिंग लैंग्वेजेस। प्रोसेस मॉडलिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके थ्रू वो उसको प्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। एंड दिस इज द ग्रुप दैट इज आई वुड से दैट दे आर द फॉर्मल पीपल। वो चाहते हैं कि हर चीज़ फॉर्मल वे में होनी चाहिए। और इसी तरह से तीसरा ग्रुप है दैट इज टूल एडवोकेट्स। दे आर टूल ओरिएंटेड, दे लाइक टूल्स, और थ्रू टूल्स जो है वो चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव करे, और प्रोसेस की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, वो टूल बेस्ड अप्रोच ही के साथ होना चाहिए। तो दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन टूल्स। और फिर जो फोर्थ ग्रुप है दैट इज प्रैक्टिशनर्स। और प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? जो प्रोजेक्ट लेवल प्लानिंग और मैट्रिक्स के साथ इंटरेस्टेड होते हैं। दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, कि किस तरह से हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से मैट्रिक्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसी तरह से एक और ग्रुप है दैट इज रिफॉर्मर्स, दोज हु लाइक रिफॉर्म्स। और वो कौन होते हैं? जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। वो दे लाइक टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द सेटअप। और फिर इसी तरह से दे आर मोर इंटरेस्टेड, मोर कीन इन ह्यूमन इश्यूज। और उन लोगों को जो इंटरेस्ट होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर चेंज लाके हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करेगा। और एक और ग्रुप जो है दैट इज आइडियोलॉजिस्ट। और अगेन ये आइडियल सिनेरियोस की बात करते हैं, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। जो हम किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अगर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये पूरे प्रोसेस इंप्रूवमेंट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, या वो जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास। और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस एसपीआई, और उनकी जो इंटेंशंस हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, अगर उनको अंडरस्टैंड करके हम लेके चलेंगे साथ, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये सारा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं प्रोसेस मैच्योरिटी की, कि जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, जब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस की, तो हम उसको कैसे रैंक करेंगे, हम उसको कैसे जो है क्वांटिफाई करेंगे। तो हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसे वो नहीं है, प्योर मैथमेटिकल जो रैंकिंग नहीं है, लेकिन स्टिल डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मॉडल्स प्रपोज किए मैच्योरिटी के। और ये प्रोसेस मैच्योरिटी जो है इसको हम इस तरह के मैच्योरिटी मॉडल के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिकेशन इसको कह सकते हैं कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उसके प्रोसेस के हवाले से देता है। तो डिफरेंट मॉडल्स के अंदर से हम एक मॉडल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि वेल नोन है, बहुत कॉमन है, दैट इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। और इसके अंदर मैच्योरिटी को 5 लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दोज 5 लेवल्स? We discuss one by one. The first level is level 5, the highest level, and we call it optimized level. और यहाँ पे अगर किसी हम प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को अगर रैंक करते हैं that this is at level 5, तो इट मीन्स कि वो द बेस्ट लेवल है, ऑप्टिमाइज्ड लेवल है। और इसके अंदर क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस प्रोसेस के अंदर? क्वांटिटेटिव फीडबैक जो है ना मैकेनिज्म होगा टू आइडेंटिफाई प्रोसेस वीकनेसेस, और फिर टू रेक्टिफाई दोज वीकनेसेस दे हैव प्रोएक्टिव अप्रोच। और उसको वो चाहेंगे, अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोसेस इस तरह का है जहाँ पे क्वांटिटेटिव फीडबैक है और दे आर प्रोएक्टिव, दैट इज लेवल 5। और यहाँ पे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो हैं दैट आर एवेल्युएटेड एंड अपडेटेड to prevent known type of errors from recurring. They have practices, they have some sort of procedures
कि वो जो भी उनकी उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो नॉन टाइप्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उसको जो है वो दोबारा आकर ना हो। तो ये सबसे डिजायरेबल लेवल है, दैट इज लेवल 5। अब अगर हम लेवल 4 की बात करें, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड लेवल, और इसके अंदर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एट लेवल 4 दे आल्सो हैव डिटेल्ड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स। कंप्लीट जो है उसके उनके पास भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग है मैट्रिक्स के वाले से, प्रोसेस के वाले से, एंड दे हैव मीनिंगफुल वेरिएशन इन प्रोसेस परफॉर्मेंस, जो कि अगर कोई जो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो डेफिनेटली जो है वो डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे। एक वेल डिफाइंड प्रोसेस के साथ वो काम कर रहे हैं और उसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, एंड they have procedures or their process is mature enough to predict about the process and the product quality। वो ट्रेंड्स को देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू देयर प्रोसेस। लेवल 3 इज द डिफाइंड लेवल, और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफ सम ऑर्गेनाइजेशन इज एट लेवल 3, their processes are documented, standardized and integrated into standard software process। जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके सारे प्रोसेसेस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेड भी हैं और स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, और उनके जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है अप्रूव्ड वर्जन जो है या कस्टमाइज्ड वर्जन जो है प्रोसेस का वो फॉलो होता है। ऐसे नहीं होता उनके प्रोजेक्ट्स के विदाउट एनी डिफाइंड और अप्रूव्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो। इसी तरह से लेवल 2 दैट इज रिपीटेबल, और ये अगेन अभी हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, मेच्योरिटी लेवल जो है वो हमारा डाउन होता चला जा रहा है, और एक लेवल 2 को रिपीटेबल कहते हैं, और इसके अंदर भी at least organizations have basic processes to establish processes to track the cost, schedule and functionality। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं वो होती हैं, एंड दे प्लान एंड मैनेज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो वो उस तरह से प्रोडक्ट्स को जो है लेके चल रहे होते हैं, और यहाँ पे मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ वर्ड प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। और लेवल 5 दैट इज़ इनिशियल लेवल, और इसके अंदर जो है दे जस्ट हैव फ्यू प्रोसेसेस दैट आर डिफाइंड, और आमतौर पे इस लेवल के ऊपर, और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस इसी लेवल के ऊपर जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे कोई ऐसा सच फॉर्मल प्रोसेसेस फॉलो नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे रादर देन कि टीम एफर्ट्स जो है वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएं, हमारा उसके ऊपर फोकस हो, यहाँ पे सक्सेस बेस करती है इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर। इंडिविजुअल्स परफॉर्म वेल सो दे लीड टू सक्सेस। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंसी या उसका इतना कोई रोल नहीं होता। हमने बात की मैच्योरिटी लेवल्स की, और कि प्रोसेस को हम असेस कर सकते हैं कि कितना मैच्योर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सॉफ्टवेयर हाउसेस, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आमतौर पे वो ज़्यादा इंक्लाइन होती हैं टूवर्ड्स इमेच्योरिटी, कि उनके सॉफ्टवेयर इतने जो प्रोसेस है वो इतने मैच्योर नहीं होते। तो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ अबाउट द लेवल ऑफ इमेच्योरिटी, और ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इसमें लेवल 0 देखें, द फर्स्ट लेवल, या इसको कहना चाहिए कि लोएस्ट लेवल, दैट इज नेग्लिजिएंट। और नेग्लिजिएंट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस लेवल के ऊपर होती हैं उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, they are actually we may say they are failed to allow the successful development process for their products। तो उनके पास कोई ऐसा सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं होता जिसको वो लेके चल रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मिसकंसेप्शन होती है, और क्या है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखते हैं, दे कंसीडर दोज ऑल प्रॉब्लम एज टेक्निकल प्रॉब्लम्स। उनके नज़दीक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी नेचर सिर्फ टेक्निकल होती है, और जो
मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, दे कंसीडर दोज एक्टिविटीज़ एज ए ओवरहेड। तो जब आप उसको बोझ समझेंगे, जब आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट समझेंगे कि बेकार की एफर्ट है, तो डेफिनेटली आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि इस तरह से अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। लेवल 1 दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव, और ऑब्स्ट्रक्टिव जो है दे हैव काउंटर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। व्हाट डज इट मीन कि जैसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो होता है कि आपने प्रोसेसेस ऐसे हैं आपके हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो कि डिस्करेज करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को या एफिशिएंसी को जो है वो डिक्रीज करते हैं। और इसके अंदर वो जो जो प्रोसेसेस हैं वो रिजिडली डिफाइंड है, एंड दे आई मीन द टॉप ऑर्गेनाइजेशन डोंट लाइक टू चेंज दोज प्रोसेसेस। तो वो दे ऑलवेज स्ट्रेस टू एडहेयर टू दोज प्री डिफाइंड प्रोसेसेस। तो ये क्या होता है, आपकी डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है क्वालिटी उसको इफेक्ट करता है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टेटस को होता है, उसके अंदर कोई पावर डेलीगेशन नहीं होती या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो दूसरों को असाइन नहीं की जाती, उसको डेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो इसको जो है कहते हैं कि लेवल 1 है इमेच्योरिटी का। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की, दैट इज कॉन्टेम्प्टस। और ये कौन होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस को उस तरह से कंसीडर ही नहीं करते। आई वुड से कि दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। और फिर इनके अंदर जो है एक बड़ी क्लियर जो है सेपरेशन होती है बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। दे आर मोर फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, और सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज के ऊपर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एंड दे हैव नो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव देयर प्रोसेस। और इसी तरह से जो आखिरी लेवल है दैट इज लेवल 3 अंडरमाइनिंग। और ये सबसे सीरियस लेवल है इमेच्योरिटी का, दैट इज टोटल नेग्लेक्ट ऑफ ऑन चार्टर। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं, जो भी पॉलिसी है, इवन उसको भी निगलेक्ट करते हैं। और फिर दे आर कॉन्शियस, they have conscious effort to discredit the competitors' effort in software process improvement, और उसको भी वो नहीं वो करते, appreciate नहीं करते। and there is reward for the failure or the poor performance, कि ये बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि नॉन सीरियसनेस को शो करता है टूवर्ड्स प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि उनका लेवल ऑफ इमेच्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। अब हम बात स्टार्ट करते हैं ओवरऑल जो एसपीआई प्रोसेस है उसकी। और उसके अंदर सबसे पहली जो डिस्कशन है वो ये है कि क्या लार्ज स्केल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे नीड सच इनिशिएटिव्स, और small organization also need such kind of initiatives। और आम तौर पे जो समझा जाता है, जो एक मिसकंसेप्शन है अगेन, या मिथ इसको कह लें, दैट इज कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो है इट इज़ फॉर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, और वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। जबकि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे इसको इस तरह से भी जस्टिफाई करते हैं कि वी हैव इनोवेटिव वे, हमारे अपना एक स्टाइल है काम करने का, और एक हम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, वी हैव क्रिएटिविटी। तो ऐसा जो है नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ऐसा है कि अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इफ दे प्रोसीड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डेफिनेटली दे नीड लेस रिसोर्सेज। क्योंकि अगर बड़ी स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल। लेकिन जब स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी तो उसका हमने पहले डिस्कस किया कि अल्टीमेट जो रिजल्ट है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेंगे, आप कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे। तो इसीलिए
हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, इवन वो स्मॉल स्केल भी हों, उनको सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए परस्यू करना चाहिए। और फिर इसके बाद अगेन के हम इस प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करें, और प्रोसेस को इनिशिएट करना जो है इट इज़ अगेन क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कैसे जो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट को इनिशिएट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया दैट इज कॉल्ड आइडियल, एंड आइडियल इज like the abbreviation, it stands for initiating, diagnosing, establishing, acting and learning। कि आप इनिशिएट करें प्रोसेस, उसके अंदर डायग्नोज करें प्रॉब्लम, उसके अंदर आप कुछ अपने लिए पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें जो है वो एस्टेब्लिश करें, और अकॉर्डिंग टू दोस रिकमेंडेशंस या वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें, और फिर उसको अगेन वैल्यूएट करें और लर्न करें, और कैसे उसको एक कंटिन्यूस साइकिल होना चाहिए। एक और अप्रोच जो है जो इस बुक के अंदर डिस्कस की गई है, और इसको आगे हम अगली स्लाइड्स के अंदर और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, इसके अंदर वो कहता है कि लुक इन द मिरर फर्स्ट, अगेन यू नीड टू सी योरसेल्फ, आप अपनी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स देखें, एंड देन गेट स्मार्टर टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, इंटेलिजेंट डिसीजंस आपने लेने हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सेलेक्ट द प्रोसेस मॉडल दैट इज बेस्ट फिट इन योर कॉन्टेक्स्ट, वो प्रोसेस मॉडल लें, फिर इंस्टेंशिएट द मॉडल, उसको वहाँ पे फॉलो करें, अडॉप्ट करें, उसको लेके चलें, और फिर उसको एवेलुएट करें, और अगेन ये भी आइटरेटिव प्रोसेस है। अब इस सारे SPI प्रोसेस को हम इसके अंदर क्या कुछ हमारे पास की कंसिडरेशंस हैं, क्या कुछ स्टेप्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो की एक्टिविटी है दैट इज असेसमेंट एंड गैप एनालिसिस, और बड़ा एक अच्छा जो है यहाँ पे पॉइंट है दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी यू मस्ट नो प्रिसाइसली वेयर यू आर। आप जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इफ़ यू नो यूर स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बारे में आप वेल अवेयर हैं, तो फिर आप डेस्टिनेशन जो भी सेट करेंगे उसकी तरफ मूव करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इजी होगा। और अगर आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चाहती हैं कि वो प्रोसेस इंप्रूव करें, और लेकिन उनकी अपने क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, इसको जाने बगैर अगर एक ऐसे ही जस्ट इस थीम के साथ कि बस हमने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है वो चलेंगे और एफर्ट अपनी जो है वो उस पर लगाएंगे, तो अक्सर क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड स्टडी है इसके अंदर उन्होंने बताया है कि half of the all efforts in the context of process improvement are totally failure। क्यों कि organizations properly उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, प्रॉपरली अपने आप को असेस नहीं करती, प्रॉपर गैप एनालिसिस नहीं करती। तो इसीलिए जो पहली एक्टिविटी है की एक्टिविटी दैट इज असेसमेंट। और असेसमेंट क्या है? यू नीड टू अनकवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो भी एग्जिस्टिंग है, एंड देन you need to examine the existing generic mechanism और process activities। जो अभी जो process है उसके अंदर कैसे activities हो रही हैं, कैसे डिज़ाइन जो है वो मॉडल हो रहा है, कैसे जो है आप कोड कर रहे हैं, टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ क्या है, तो उन सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखना होगा। और फिर उसके बाद आपने ये भी देखना है कि सिर्फ ये नहीं है बल्कि कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आपने आंसर करना होगा। और ये आंसर जो है यस या नो में नहीं होगा बल्कि इस पे डिटेल जो है आपको एनालिसिस करना होगा। लाइक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्शन क्लियरली डिफाइंड, जो भी आपके डिफरेंट एक्शंस हैं क्या उनका पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है, वो डिफाइन है। इसी तरह से आर वर्क प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड एज इनपुट एंड प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब। जो भी वर्क प्रोडक्ट्स हैं क्या उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्या प्रॉपर्ली उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। आर द वर्क टास्क टू बी परफॉर्म क्लियरली डिस्क्राइब, जो भी टास्क डिफरेंट आपके हैं उनको प्रॉपर्ली क्लियरली डिस्क्राइब किया गया या नहीं किया गया। इसी तरह से
आर द पीपल हु मस्ट परफॉर्म द एक्शन आइडेंटिफाइड बाय रोल्स, जो भी डिफरेंट पीपल या टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया, या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही विदाउट एनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चली जा रही है। इसलिए वो आपने कोट सुना होगा कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यू नीड टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह से हैव मैट्रिक्स फॉर द एक्शन बीन एस्टैब्लिश्ड, डिफरेंट जो आपके एक्शंस हैं, जो डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या उनके लिए आपने मैट्रिक्स डिवाइस किए हैं, और जो पिछले जैसे हमने 2 लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स को डिस्कस किया, क्या उस तरह के कुछ मैट्रिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो हो रहे हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है। और फिर इसी तरह आर टूल अवेलेबल टू सपोर्ट द एक्शन, डिफरेंट क्या ऑटोमेटेड टूल्स आपके पास हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट फेजेस के लिए, या आप विदाउट टूल सारा कुछ जो है मैनुअल जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड सो ऑन। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है सिर्फ यस नो में नहीं, बल्कि डिटेल्ड आंसर होना चाहिए, ताकि आप उसमें देख सकें कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं या क्या उसकी वीकनेसेस हैं। व्हेन यू परफॉर्म असेसमेंट यू नीड टू फोकस ऑन द फ्यू की एट्रीब्यूट्स। वो की एट्रीब्यूट्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी देखनी है किसके अंदर, जो भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टास्क हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो रहे हैं, इस चीज़ को आपने देखना है डिफरेंट एक्शन और टास्क को जब आप असेस कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा एट्रीब्यूट है दैट इज सोफिस्टिकेशन, और ये आपने अगेन देखना है कि क्या लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है फॉर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एक्शंस परफॉर्म, कितनी फॉर्मल अप्रोच है आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए भी और टेक्निकल एक्टिविटीज़ के लिए भी, और ये भी आपको हिंट प्रोवाइड करती है आपके ओवरऑल जो प्रोसेस की क्वालिटी है या जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और थर्ड इज एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस क्या देखनी है कि जो भी आपकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस है या जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से क्या लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है इन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टाफ। समटाइम्स जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह की वो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो लेवल ऑफ इमेच्योरिटी है, तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जिसके अंदर जो है आपकी जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको सिरे से कंसीडर ही नहीं किया जाता। और अब इसी तरह से जो एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दैट इज़ कमिटमेंट, और कमिटमेंट क्या है? मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है उसको देखना है टू प्रोवाइड रिसोर्सेज जो कि आपको चाहिए। डिफरेंट जो हमने ऊपर एट्रीब्यूट डिस्कस किया, ये कंसिस्टेंसी, सोफिस्टिकेशन, एक्सेप्टेंस, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो ये एट्रीब्यूट्स जब आप अचीव करना चाहेंगे तो उसके लिए भी डेफिनेटली रिसोर्सेज चाहिए, और वो मैनेजमेंट की कमिटमेंट को देखना है कि वो किस हद तक कमिटेड है। तो जब आप असेसमेंट करें तो ये एट्रीब्यूट्स जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और एक्शंस और टास्क, आप इसको ज़रूर एनालाइज करें। जो सेकंड की एक्टिविटी है इन एसपीआई प्रोसेस दैट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो डेवलपर्स हैं, जो और टीम मेंबर्स हैं, उनको प्रोसेस के हवाले से या प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से कितनी जो है एजुकेट करने की या ट्रेन करने की ज़रूरत है। और ये एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है 3 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। द फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स। You need to train your or educate your management and developers for the process and practice. जनरल कॉन्सेप्ट कि आपको क्या एडवांटेज होगा अगर आप प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो कैसे आप क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ इम्प्रूव करेंगे। एंड यू नीड इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल टूल्स, वही अगेन कि आपने उनको कन्वे करना है। यू नीड टू मोटिवेट देम to apply the process effectively and to make rational decisions about improvement. तो ये सारा जो process है education और training that is under the heading of general concepts and methods.
और इसी तरह से जो दूसरी टाइप है या कैटेगरी है जिसके अंदर आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, दैट इज टुवर्ड्स स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। और इसके अंदर फोकस जो है वो प्रैक्टिशनर्स के ऊपर है, जो आपके डेवलपर्स हैं, जो आपकी टीम्स हैं डिफरेंट, दे नीड ट्रेनिंग के टूल जो यूज हो रहे हैं इन प्रोसेस, इन ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, क्या कुछ टूल्स हो सकते हैं, कैसे उनको जो है आपने ट्रेन करना है और उनको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। जैसे सपोज आप UML को जो है फॉर डिजाइन मॉडलिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, तो अब उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपकी जो टीम है उसको ट्रेन करना चाहिए और उनको इफेक्टिवली वो ट्रेनिंग के बाद उसको प्रॉपरली यूज कर सके फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इसी तरह से एक तीसरी टाइप है जो कि जिसके अंदर एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक्स। इसके हवाले से भी आपको ट्रेन करना है और इसके अंदर फोकस जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स पे है। पहली टाइप के अंदर हमने देखा कि फोकस मैनेजर्स और प्रैक्टिशनर्स पे, दूसरे के अंदर सिर्फ प्रैक्टिशनर्स हैं, और थर्ड के अंदर हम कह रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनके ऊपर फोकस करना है। एंड यू नीड टू एजुकेट देम विद सॉफ्ट टॉपिक्स। सॉफ्ट टॉपिक्स से क्या मुराद है, कैसे आप कम्युनिकेशन को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, अगर एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगी अमंग द स्टेक होल्डर्स, देन डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोडक्ट सक्सेस के या प्रोजेक्ट सक्सेस के। और इसी तरह से क्वालिटी के हवाले से उनको ट्रेन करने की इम्पोर्टेंस कि if we are focusing on the quality product, quality process, तो definitely in long run आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक की एक्टिविटी है कि जब आप असेसमेंट कर लें, जब आप गैप एनालिसिस कर लें कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, उसके साथ साथ आपने देखना है कि कहाँ पे किस लेवल के ऊपर या किस टाइप की ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है। थर्ड जो की एक्टिविटी है इन SPI प्रोसेस, दैट इज सिलेक्शन एंड जस्टिफिकेशन। और व्हाट डज इट मीन, once you are done with the assessment, with the gap analysis, and you also educate all the stakeholders, then you need to select the suitable process, the best fit software process model कि जो आपको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अपने यूज कर सकते हैं। एंड देन आल्सो यू नीड टू फोकस ऑन द सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, जो भी रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं जिसको आपने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझा है कि ये बेस्ट यूज हो सकती हैं, यू नीड टू अप्लाई दोज एक्टिविटीज। और फिर इसी तरह से आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि जब आपने ये डिसीजन लेने, इनफैक्ट कि जब प्रोसेस मॉडल आपने सेलेक्ट करना है, आपने ये देखना है कि किस तरह की वर्क प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या मेजर जो है आपकी वर्क प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उसकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं। एंड सिमिलरली अपनी क्वालिटी एश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जब आप प्रोग्रेस को असेस करते हैं तो किस जो है पॉइंट्स के ऊपर यू नीड क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, और उसको आपने डिसाइड करना है। और फिर इसी तरह से यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द वीकनेसेस, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, जो आपका प्रोसेस है, उसके अंदर क्या वीकनेसेस है, उसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज सिलेक्शन एंड जस्टिफिकेशन, कि आप क्या प्रोसेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से आपकी एक्टिविटीज उसमें परफॉर्म होंगी, क्या सेटअप की एक्टिविटीज है, क्या आपकी वर्क प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से जो है आपके क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट्स हैं, और फिर उन वीकनेसेस को कैसे आप इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे या रिमूव करेंगे। और इसी के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है दैट इज द कंसेंसस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। अभी हमने जो स्टार्ट में डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन SPI प्रोसेस, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ क्वालिटी ओरिएंटेड हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रिफॉर्म्स में इंटरेस्टेड हैं, और कुछ जो है वो आइडियोलॉजिकल जो है वो स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो वो उस तरह के वो जो सारे डिफरेंट टाइप के जो अगर आपके पास टीम मेंबर्स होंगे इन
दिस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, तो कंसेंसस जो है वो इतना इजी नहीं है, तो ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है, बट स्टिल यू नीड टू हैंडल इट, क्या कहना चाहिए इसको, इंटेलिजेंटली। और फिर अगर आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया और ये सिलेक्शन जो है वो आपकी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये आपको और ज़्यादा ट्रबल की तरफ लेके जाएगा। जो मैंने स्टार्ट में आपको बात बताई कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स हैं वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लॉप हो जाती हैं, आपको कोई उसका आउटकम नहीं मिलता। तो उसकी रीज़न यही है कि आप प्रॉपर असेसमेंट के साथ नहीं चलते, प्रॉपर आपकी जो है वो सिलेक्शन नहीं होती, तो डेफिनेटली यू मेक बैड चॉइसेस या बैड डिसीजंस एंड दैट लीड टू हार्म रादर देन गुड। और फिर इसी तरह से जब एक दफ़ा आपने चॉइस जो है वो आपकी होगी, यू आर डन विद द अप्रोप्रिएट मॉडल, then you need to invest your energies, your efforts, your resources into that choice, और फिर आपने उसके साथ स्टिक होना है और उसके लिए आपने एफर्ट करनी है। Another key activity is installation or migration. What does it mean? कि once you are decided कि आपने क्या प्रोसेस मॉडल फॉलो करना है, क्या की एक्टिविटीज़ होंगी, और फिर उसको जो है यू नीड टू इंस्टॉल इट। और इंस्टॉलेशन से क्या मुराद है, समटाइम्स आप क्या करेंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट जो है रिप्लेस करना है, उस प्रोसेस की जगह बिल्कुल टोटली कंप्लीट न्यू प्रोसेस लेके आना है। तो इस केस में क्या होगा, दिस प्रोसेस when you are replacing the old process with the new process, it is called installation। और फिर अगेन ये कोई इतना इजी टास्क नहीं है, और समटाइम्स जो है आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होती हैं, चेंजेस मे बी माइनर और मेजर इन नेचर। तो उसको जब आप चेंजेस जब उसके अंदर लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और अगेन उसके अंदर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल जो है वो ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो सकती हैं, और अगर आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है तो चेंजेस किस तरह से होनी चाहिए, वो एक क्या कहना चाहिए, इंक्रीमेंटल होनी चाहिए नेचर में। अगर इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगी, इंक्रीमेंटल माइग्रेशन होगी, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और आपने इसको रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को एक साथ एक ही दफ़ा में अगर रिप्लेस कर दें और करना चाहें किसी पहले से प्री डिफाइंड प्रोसेस को या एक सिस्टम को, तो डेफिनेटली इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ेगी, तो इसीलिए इंक्रीमेंटल माइग्रेशन जो है। और इसी तरह से जब आपने इंस्टॉलेशन करनी, जब कम्प्लीटली नया प्रोसेस लेके आना है, तो उसमें आपको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम। Another key activity in SPI process is evaluation, और evaluation जो है it is throughout the SPI। evaluation ही या assessment ही मैंने आपको स्टार्ट में बताया, that is the core activity, the core element of the SPI। और इसके अंदर दो तरह से हो सकती है evaluation, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। और क्वालिटेटिव फैक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो असेसमेंट है वो क्या है, वो ये है कि आप मैनेजमेंट और प्रैक्टिशनर्स का जो एटीट्यूड है आप उसको जो है एवेलुएट कर सकते हैं। आप उनकी जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी, जो उनका पास्ट जो एटीट्यूड था, और जब आपने इनिशिएटिव लिया प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का, और उस वक्त जो आपने एक्टिविटीज़ या जो भी आपने प्रोसेस चेंजेस की हैं, उसके बाद जो मैनेजर्स का और जो प्रैक्टिशनर्स का, डेवलपर्स का जो एटीट्यूड है, उसको आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आइदर देयर इज़ एनी गुड चेंज और नॉट। और इसी तरह से जो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं, जो हमने डिफरेंट पहले प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो डिस्कस किए हैं, उनके थ्रू भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो प्रीवियसली अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे, उनके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़, जो रिजल्ट्स थे, जो डेटा था, और उसको आफ्टर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट्स हमने या प्रोडक्ट्स जो हमने डिलीवर किए हैं,
उसके जो मैट्रिक्स के जो हमारे पास डेटा है, जो नंबर हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसको कंपेयर किया जा सकता है कि क्या वाकई प्रोसेस इंप्रूव हुआ, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई या नहीं हुई। एक और की एक्टिविटी इन एसपीआई प्रोसेस वो है रिस्क मैनेजमेंट, और एसपीआई इटसेल्फ इज अ रिस्की अंडरटेकिंग। जब हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये इसके अंदर इटसेल्फ रिस्क इन्वॉल्व है, और किस तरह के जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस तरह के रिस्क जो है इसके अंदर हो सकते हैं, लाइक लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। आपकी मैनेजमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही, और मैनेजमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर चेंजेस लाने में, तो वो एक बड़ा रिस्क है। इसी तरह से कल्चरल रेजिस्टेंस हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा, और इट इज़ बाय टेक्निकल स्टाफ। अपना एक हर एक का देयर इज ऑलवेज वे टू डू समथिंग, और वो उसको चेंज नहीं करना चाहता। पीपल आर ऑलवेज रिलेक्टेंट टू द चेंज, और अगर आप सब्सटेंशियल चेंज की बात करें, एक बड़ी चेंज की बात करें, तो वो और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको भी आपने जो है, ये एक आपका रिस्क है जिसको आपने कैसे जो है मैनेज करना है, कैसे देखना है। और इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेटजी है फॉर एसपीआई, वो पुअर प्लानिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। एंड इफ इट इज़ पुअरली प्लान्ड, पहले भी मैंने आपको कहा कि प्रॉपर असेसमेंट नहीं है और प्रॉपर सिलेक्शन नहीं है, तो वो आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी या फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएगी विद नो इम्प्रूवमेंट। और इसी तरह से इफ़ यू आर अडॉप्टिंग ओवर फॉर्मली अप्रोच टू एसपीआई, अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल प्रोसेसेस की तरफ आप लेके जा रहे हैं अपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ को, तो ये भी एक पॉसिबल रिस्क है कि आप फेलियर की तरफ जाएं। और इसी तरह से अगर आपने इनअप्रोप्रिएट प्रोसेस सेलेक्ट किया, सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो तब भी आपका फेलियर हो सकता है। ये रिस्क है, और इसी तरह से और भी डिफरेंट रिस्क हैं। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर कि क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हमें रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं इन एसपीआई प्रोसेस। और देखें, रिस्क जो मैनेजमेंट जो है वो 3 की पॉइंट्स हैं वेयर वी नीड टू प्रॉपरली हैंडल और मैनेज द रिस्क। द फर्स्ट वन इज बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर, इवन बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द एसपीआई, हमने उस वक्त देखना है, ओवरऑल हमने असेसमेंट करनी है कि कितना कुछ इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। जो डिफरेंट, अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि जो डिफरेंट टाइप के रिस्क हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हमने पहले असेस करना है। वंस एसपीआई प्रोसेस इज स्टार्टेड, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एसपीआई एक्टिविटीज वी नीड टू बी केयरफुल कि वो क्या डिफरेंट वहाँ पे रिस्क हो सकते हैं और उनको कैसे टैकल करना है। और फिर इसी तरह से एट द टाइम ऑफ एवेल्युएशन, जब हम एवेल्युएशन कर रहे हैं डिफरेंट एसपीआई एक्टिविटीज़ जो हैं, उस टाइम के ऊपर जो है वी नीड टू केयरफुल अबाउट डिफरेंट रिस्क रिलेटेड टू एट दैट टाइम। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। इस स्लाइड पे देखें कि ये पॉसिबल रिस्क कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज बजट एंड कॉस्ट। क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है इतना बजट है, वो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि वो इस सारे एसपीआई प्रोसेस को जो है वो मैनेज कर सके और सक्सेसफुली जो है वो लेके चल सके अप टिल द कंप्लीशन। ये एक कैटेगरी है। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेकंड इज कंटेंट एंड डिलीवरेबल्स, कि आपके एसपीआई जो इनिशिएटिव है उसके हवाले से जो है क्या आपके कंटेंट्स हैं, किस तरह के आपके डिलीवरेबल्स होंगे ये। और फिर थर्ड टाइप देखें, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है, और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कैटेगरी है, और इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का एटीट्यूड कैसा है, आपकी करंट प्रैक्टिसेस क्या है, आप किस तरह से सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट को देख रहे हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो है इसके अंदर हो सकते हैं। इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ एसपीआई डिलीवरेबल्स, जो भी डिलीवरेबल्स हैं थ्रू प्रोसेस इंप्रूवमेंट, तो वो उनकी मेंटेनेंस क्या होगी, उसके अंदर क्या पॉसिबल जो है रिस्क हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के मिशंस एंड गोल या एसपीआई के हवाले से जो आपके मिशंस एंड गोल हैं उससे रिलेटेड जो
डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जो है ओवरऑल उसके हवाले से रिस्क हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से आपके पास डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं। प्रोसेस स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसके अंदर आपके जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आपका बिजनेस है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो किस तरह से देखते हैं सारे प्रोसेस को। इसी तरह से आपके जो स्केड्यूल्स हैं और इसी तरह से आपका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट और प्रोसेस है, जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है इटसेल्फ एसपीआई के अंदर, क्योंकि एसपीआई इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट उसको भी ऐसे ही लिया जाएगा जैसे कि एक दूसरे प्रोजेक्ट को लिया जाता है। तो उसके वाले से आपने इन सारे फैक्टर्स को और इनके रिस्क को देखना होगा। अब हम कुछ बात करते हैं एसपीआई प्रोसेस के वाले से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की। पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने डिफरेंट तरह के रिस्क को डिस्कस किया और उसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी हाउ टू मैनेज दोज रिस्क्स। लेकिन यहाँ पे हम कुछ की फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि बड़े क्रिटिकल हैं और इनको हम सक्सेस फैक्टर्स कह रहे हैं। और इसके अंदर अगेन टॉप के ऊपर दैट इज मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। और मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कोई भी आपने इनिशिएटिव लेना है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर एंड यू वांट टू रिवाइज और यू वांट टू इम्प्रूव द प्रोसेस, द ओवरऑल प्रोसेस, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर चेंजेस आएंगी, आपका कल्चर चेंज होगा। और ये दोनों चीज़ें जो है ये जब तक टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तब तक इसके वाले से कोई इफेक्टिव चेंज नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो है सीनियर जो बिजनेस मैनेजर्स हैं दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, और उसके वाले से जो इम्प्रूवमेंट है और फिर आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव होगी वो बहुत क्रिटिकल है। और इसी तरह से जो टेक्निकल जो मैनेजर्स हैं दे आल्सो नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन योर एसपीआई प्रोसेस, इन एसपीआई स्ट्रेटजी। जो भी आप लोकल जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस, उसके अंदर जो टेक्निकल मैनेजमेंट है, जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं, उनकी फीडबैक, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, उनकी जो कंसेंसस के बगैर अगर आप इनिशिएटिव्स लेंगे तो वहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि वो लोग टेक्निकली एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं। इसी तरह से जो सेकंड की जो सक्सेस फैक्टर है दैट इज स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जहाँ पे उनकी कमिटमेंट ज़रूरी है। इसी तरह से जो टेक्निकल स्टाफ है, जो आपका जो प्रोजेक्ट टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कमिटमेंट जो है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है। यू कैन नॉट इम्पोज फ्रॉम टॉप, और आप जो है इफ़ यू आर आउटसाइडर, आप अगर आप कंसल्टेंट हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट करनी है, तो यू कैन नॉट इम्पोज स्टाफ और द टीम मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो उनकी जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब उनकी जो आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। थर्ड की फैक्टर इज प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डज इट मीन कि जो भी आपके प्रोसेसेस हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उनको अंडरस्टैंड करते हुए आपके जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव है, जो भी अपने प्रोसेस इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट करना है, दैट मस्ट बी सिंक विद योर बिजनेस प्रोसेसेस, और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो है उनको एड्रेस करना चाहिए, अदरवाइज जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अनदर की फैक्टर इज कस्टमाइज्ड एसपीआई स्ट्रेटजी। व्हाट डज इट मीन कि आप एक ही स्टैंडर्ड टाइप की जो स्ट्रेटजी है उसी को हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले लोकल जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन्वायरमेंट, और फिर उसके मुताबिक एक कस्टमाइज्ड अप्रोच लेके आनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की स्ट्रेटजी जो है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव हो। सो यू नीड टू कस्टमाइज योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल लोकल इन्वायरमेंट। और जो एक और की फैक्टर है दैट इज सॉलिड मैनेजमेंट ऑफ द एसपीआई प्रोजेक्ट। ये मैंने पहले भी आपको बात की कि एसपीआई इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरह से इनिशिएटिव लेती है
तो इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अपने गोल्स होते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसके अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो जब आप उसको प्रॉपरली उस तरह से लेके चलेंगे विद प्रॉपर प्लान्स, विद प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी बजट्स, रिसोर्सेज, कॉन्स्टेंट्स, वो सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपरली उस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेके आप चलेंगे तो तभी वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज जो है अगेन चांसेस क्या हैं कि आप फेलियर की तरफ जाएंगे। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात की और हमने कहा कि ये क्यों ज़रूरी है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाई वी वांट टू इम्प्रूव आवर प्रोसेस। तो ट्रिपल कांस्टेंट की बात की हमने, प्रोजेक्ट जो आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री की बात की कि नॉर्मली फेलियर रेट जो है वो सक्सेस रेट से ज़्यादा है और अक्सर जो है वो ऑन टाइम नहीं होते या अकॉर्डिंग टू द बजटेड एस्टिमेट्स जो है वो नहीं होते, ओवररन हो जाता है एस्टिमेट्स के अंदर। तो अगर हम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी चाहते हैं, हम ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो वी नीड टू इम्प्रूव द प्रोसेस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जिसके ऊपर वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इफ वी इम्प्रूव दैट infrastructure, that process, definitely we will lead towards good product quality। और उसके अंदर फिर हमने कहा कि इन जनरल हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो की कंपोनेंट है वो असेसमेंट है। एंड वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज़ या स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। फिर उसके मुताबिक जो है हमें सजेशंस जो है या रिकमेंडेशंस होती हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर उसको एवेलुएट करना होता है, असेस करना होता है। हमने बात की कि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट जो है इस इनिशिएटिव को लेके चलते हैं तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और उनके इंटरेस्ट को सामने रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है ताकि आप उस तरह से जो है उनके कंसेंसस के साथ जो है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। दैट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। और उसके अंदर हमने कहा कुछ क्वालिटी सेंट्रिक होते हैं या उनको क्वालिटी सर्टिफायर्स हमने कहा। दे अंडरस्टैंड, दे बिलीव दैट इफ़ वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस वी लीड टूवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी। इसी तरह से हमने कहा कुछ रिफॉर्मर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जो है चेंज करना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन इश्यूज। इसी तरह से कुछ जो है वो टूल ओरिएंटेड होते हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव में टूल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसी तरह से कुछ आइडियोलॉजिकल होते हैं जो स्पेसिफिक डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं, उन स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम उन डिफरेंट तरह के जो ग्रुप्स हैं या हमारे उस इनिशिएटिव के अंदर जो इस तरह की डिफरेंट थिंकिंग वाले जो लोग हैं उनको जो है हमें अंडरस्टैंड करना होगा और उनको देखना होगा। इसी तरह से हमने बात की मैच्योरिटी मॉडल की कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है असेस करते हैं फॉर द प्रोसेस कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कितना मैच्योर है, तो डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने मॉडल्स प्रपोज किए हैं। इसके अंदर हमने जो मोस्ट कॉमन मॉडल है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, उसके जो 5 डिफरेंट लेवल्स हैं उसको हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस मैच्योरिटी। और फिर हमने कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर इमेच्योर इन प्रोसेस क्वालिटी। तो फिर एक और मॉडल हमने डिस्कस किया जो कि डिफरेंट लेवल्स बताता है ऑफ इमेच्योरिटी, और ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग था इसको देखना, इसको डिस्कस करना। और फिर हमने जो भी एसपीआई प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हैं इस प्रोसेस के अंदर उनको डिस्कस किया। उसके अंदर जो पहली हमारी की एक्टिविटी है दैट इज़ असेसमेंट एंड गैप एनालिसिस, और यहाँ पे हम वो स्ट्रेंथ्स सॉरी इधर से दोबारा बोल रहा हूँ, और इसके अंदर हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं और किस तरह से हम अपने वीकनेसेस को जो है वो इम्प्रूव या फोकस करना है उनके ऊपर, इसको देखते हैं। और फिर हमने कहा कि
तो प्रॉपर गैप एनालिसिस होना चाहिए कि क्या हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और इस जो एक डिज़ायर्ड प्रोसेस है जो कि टू बी प्रोसेस है जो कि होना चाहिए, उसके बीच में क्या गैप है, तो उसको कैसे फिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक हमने जो दूसरी की एक्टिविटी डिस्कस की, दैट वाज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और हमने कहा कि प्रॉपर असेसमेंट के साथ अगर हम गैप आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे वी नीड टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और 3 डिफरेंट तरह की हमने ट्रेनिंग की, एजुकेशन की बात की। द फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू द प्रोसेस, कि प्रोसेस के ऊपर फोकस करें, प्रोसेस क्वालिटी के जो उसके वाले से एजुकेट करें अपने जो सीनियर मैनेजर्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं, उन सबको। और फिर इसी तरह से हमने टेक्निकल जो मैनेजमेंट है जो कि टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके वाले से बात की, और उसके अंदर जो टेक्निकल मैनेजर्स या प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फोकस की बात की। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि इन जनरल जो कम्युनिकेशन और जो क्वालिटी ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए। जो तीसरी की एक्टिविटी है दैट इज सिलेक्शन एंड जस्टिफिकेशन। और सिलेक्शन क्या है कि आपने कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो उसको फॉलो करना है। अगेन आप इसके जब सिलेक्शन करेंगे तो उसकी विद ड्यू जस्टिफिकेशन होगी कि क्या आपकी की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी वर्क प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिलीवर कर रहे हैं। तो और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लोकल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप इश्यूज को देखते हुए यू नीड अ गुड चॉइस। और अगर आपकी चॉइस सही नहीं होगी, आपकी सिलेक्शन सही नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। और फिर वंस यू आर डिसाइडेड, जो भी आपने प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट की एक्टिविटी है दैट इज इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस को जो है टोटली रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू प्रोसेस लेके आ रहे हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर ही चेंजेस करनी है और ये चेंजेस माइनर या मेजर हो सकती हैं तो फिर माइग्रेशन इसको कहते हैं। और माइग्रेशन का प्रोसेस भी जो है इसके अंदर भी हमें मैनेजमेंट और स्टाफ की सपोर्ट चाहिए होती है। और ग्रेजुअल जो है माइग्रेशन, जिसको इंक्रीमेंटल माइग्रेशन का, वो ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इस तरह के सारे प्रोसेस को। और उसके बाद हमने कहा कि एवेलुएशन, और एवेलुएशन की एक्टिविटी है असेसमेंट, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है इस सारे ओवरऑल एसपीआई प्रोसेस का। और इसके अंदर हमने कहा कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर हमने बात की कि जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है, जो प्रैक्टिशनर्स का एटीट्यूड है, वो जो प्रीवियस एटीट्यूड था, जो पास्ट जो उनका एटीट्यूड था, उसको कंपेयर किया जा सकता है जो आफ्टर इम्प्रूवमेंट, आफ्टर द एसपीआई प्रोसेस जो है, और उसको देख सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है। क्वांटिटेटिव जो एवेल्युएशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मैट्रिक्स, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स इम्प्रूवमेंट से पहले वाला जो डेटा है और इम्प्रूवमेंट के बाद का जो प्रोजेक्ट्स हैं और उसके जो मैट्रिक्स के थ्रू जो डेटा है उसको कंपेयर किया जा सकता है कि आइदर वी आर गोइंग टूवर्ड्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी और नॉट। तो और इसी तरह से एक की एक्टिविटी दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। और एसपीआई के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि ये जो है एसपीआई इटसेल्फ इज अ रिस्की अंडरटेकिंग, और डिफरेंट तरह के रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसको हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हवाले से रिस्क हो सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, और भी डिफरेंट तरह की हमने कैटेगरीज भी इवन डिस्कस की। और इसके अंदर जो की हमने एक पॉइंट डिस्कस किया दैट वाज रिस्क मैनेजमेंट एट 3 डिफरेंट स्टेजेस। और वो क्या था कि पहले हम एसपीआई का जो प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, प्रायर टू दैट प्रोसेस, prior to that initiation we need to assess the risk, और फिर during the activities होना चाहिए, एंड थर्ड at the time of evaluation, जब हम उन activities को evaluate कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर भी रिस्क हमने देखना है।
इसके बाद हमने आखिर में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखा। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क या कैटेगरीज ऑफ रिस्क, लेकिन हम अगर उसको और ज़्यादा जो है समराइज करें या हम उसको माइक्रो लेवल के ऊपर या मैक्रो लेवल के ऊपर देखें तो हमारे पास कुछ की सक्सेस फैक्टर्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना, कंसीडर करना ज़रूरी है। और उसके अंदर भी टॉप मैनेजमेंट जैसे सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। जो टेक्निकल जो आपका स्टाफ है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है दैट इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और हमने कहा कि जो एसपीए स्ट्रेटजी है वो लोकल जो इन्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हुए होनी चाहिए। एक ही तरह की स्ट्रेटजी सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं हो सकती। और इस लेक्चर के बाद आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का जो ओवरऑल प्रोसेस है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।